أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ القصص ون آف مائی فیوریٹ سورات. ابھی جو صورتیں آج آئی ہیں ان میں سے 3 صورتیں ہیں، سورۃ قصص، عنکبوت اور روم. تو قصص بھی میری فیوریٹ ہے بٹ روم از مائی موسٹ فیوریٹ. ایک ہوتی ہے پسند، ایک ہوتی ہے شدید پسند، تو وہ ان میں سے ہے. تو مطلب آج ساری صورتوں کی میں لائن دیکھ رہی تھی، میری پسندیدہ صورتیں ہی ہو رہی ہیں. قصص بھی انہی میں سے ہے. سورۃ قصص 28 نمبر صورت ہے، 88 آیات ہیں. اس کا ٹائم آف ریولیوشن ہے 690 سے لے کر 1090 تک، یعنی تھرڈ پیریڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت بھی آپ نے کر دیا ہے. پہلے 3 سال ہیں جب آپ نے اعلان لوگوں میں نہیں کیا، مطلب چھپ کے دعوت دے رہے تھے. دوسرے 2 سال ہیں پھر جب آپ نے اعلان کر دیا، اور 6 سے لے کر 10 تک یہ 5 سال ہیں جب آپ نے اعلان نبوت کے کانسیکوینسز آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گئے. آپ کو ہیوملیٹ کیا گیا، آپ کو انسلٹ کیا گیا. تو یہ وہ چیز ہے، وہ دور ہے. اچھا، اس صورت میں پہلی بار دیکھیں 70 ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بتایا گیا. 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں میں حضرت موسیٰ کی بات کی گئی. اتنا زیادہ کسی اور پروفٹ کو اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنا زیادہ بیان نہیں کیا گیا. لیکن اس میں ایک خاص طرح سے بیان کیا گیا ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ وقت جو نبوت سے پہلے کا گزرا ہے، وہ آپ کا ایڈلٹہڈ، جیسے آپ کی ٹین ایج ہے جس میں آپ نے وہ اس بندے کو مارا، پھر وہاں سے مدین بھاگے، پھر آپ کا شادی کا ٹائم، اور پھر شادی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا ایک خاص تذکرہ ہے 3 اور لوگوں کا، 2 اور لوگوں کا فرعون کے ساتھ ساتھ. حامان اور قارون کا تذکرہ ہے اس صورت میں پہلی بار. آپ نے یہ نام پہلے نہیں سنا ہوگا قرآن پاک میں، نہ حامان کا سنا ہوگا نہ قارون کا سنا ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ صورت ڈسٹنکٹ ہے. اور اس کی آیت نمبر 7، ان لرادوہ الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا کہ ہم اس کو آپ کی طرف دوبارہ لوٹائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، نہ صرف بچپن میں بلکہ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہے. اور آیت نمبر 85 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، حامل قرآن کو کہا گیا ہے، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَآدٍ. بالکل ورڈ بھی وہی ہے، ہم آپ کو لوٹائیں گے وہاں جہاں آپ کو ہونا چاہیے، اسی ٹھکانے کی طرف جہاں سے آپ نکالے جا رہے ہیں. مدینہ جانا، مدینہ سے واپس مکہ آ کر فتح کرنا. تب فرعون کا محل کفر کا گڑھ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کفر کا گڑھ تھا. اور ہر حامل قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو وہاں تک لوٹائیں گے جہاں آپ لوٹنا چاہتے ہیں. یہ جدائیاں آخر ختم ہوں گی، یہ فتح آخر کار نصیب ہوگی. قارون، اچھا ایک اور چیز ہے، اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ انٹریکشن. فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ملا، فرعون کو دعوت دینے کا حکم ملا، فرعون سے وہ بنی اسرائیل مانگ رہے ہیں، پھر فرعون اس میں غرق ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ قارون وہ آؤٹ سائڈ دشمن تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، لیکن قارون اپنوں میں سے تھا. جی، بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، whether he is cousin of حضرت موسیٰ علیہ السلام اور not، لیکن وہ تھا اپنوں میں سے ہی، ریلیٹیو تھا یا کزن تھا یا وہ بنی اسرائیل کا کوئی اور فرد تھا، جیسے دور کے خاندان کا رشتہ دار ہوتا ہے، بٹ ہی از فرام بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ چاہے فرعون کے محل میں رہ رہے تھے لیکن اپنے لوگوں کا بھلا سوچ رہے تھے. ان سے قتل بھی ہوا ہے تو لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے ہوا ہے. اور قارون چاہے ایک غریب بستی میں رہنے والا لڑکا تھا اور بعد میں اس نے اپنا مال و دولت جمع کیا، لیکن وہ خواب محلوں میں جانے کے ہی دیکھ رہا تھا، اپنے لوگوں کا نقصان سوچ رہا تھا.
अपने लोगों के मफादात कंप्रोमाइज़ करके फ़िरौन के दरबार में ऊंची हैसियत अपने माल के ज़रिए चाहता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था जब आप यहाँ से भागे हैं, मिस्र से मदियन गए हैं, कह रहे हैं रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह कुछ भी अच्छा तो मेरी तरफ नाजिल करे, तो कोई भी अच्छा काम करने का मौका दे तो मैं उसका मोहताज हूँ। और इसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन सबब दिए। इतनी मालो दौलत थी कि कितने ही ऊँटों पर तो उसके ख़जानों की कुंजियाँ ला दी जाती थी, लेकिन इसने ये सारा इंसानियत की भलाई के लिए खर्च करने के बजाय इसने अपना इकट्ठा किया और बनी इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमने कल पढ़ा था ना लीडर की खसूसियत क्या होती है, यहाँ बताया कि अल्लाह ने तीनों लीडर मेंशन करके दिखाती हैं। और जो अपने ही लोगों का नुकसान करता है फिर कभी अल्लाह उसको बता देता है, कारून की तरह ज़मीन में धंसा देता है या फ़िरौन की तरह पानी में गर्क कर देता है। So this is the central idea and central theme of this surah. चलते हैं आया ब आया। फर्स्ट पार्ट जो है ये है खौफ की कहानी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ की कहानी 35 आयत तक है पहली से लेकर। सेकंड पार्ट है 36 से लेकर 75 तक, इसमें हामान की कहानी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत का मिलना और लोगों का शरीयत पर अमल ना करना और अल्लाह ताला की कुछ और नसीहतें भी हैं। और लेकिन थर्ड पार्ट है फिर कारून की स्टोरी जो 76 से लेकर एंड ऑफ सूरा 79 तक, और फिर 79 से 85 तक फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है। सो देयर आर 3 मेजर पार्ट्स और 3 इस स्टोरी के विलन हैं। कौन कौन से? फ़िरौन, हामान और कारून। और इस सूरत के 3 ही मेजर पार्ट्स हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, उनके खौफ की कहानी, हामान की कहानी और कारून की कहानी। एंड दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन मीम हरूफ मुक़त्तात, ये किताब मुबीन की आयत हैं जो आपकी तरफ पढ़ी जाती हैं। नत्लु अलैका, इनको पढ़ के सुनाओ, तिलावत करके इनको ये स्टोरी सुनाओ कि मूसा और फ़िरौन की जो स्टोरी थी। इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि, फ़िरौन ज़मीन में बड़ा बन गया था, उसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, उसे लगने लग गया कि वो वाकई अपनी पावर्स के साथ जो चाहे कर सकता है, और उसने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। वजाला अहलहा, अच्छा जो पावर का गलत इस्तेमाल करता है वो क्या करता है? उठ के रहने वालों को, मिस्र के रहने वालों को शेयान, गरोह गरोह बना दिया, उनको नज़रियाती तौर पे एक दूसरे से लड़ा दिया। जो काम कल के फ़िरौन ने किया था आज हमारा मौलवी खुद कर रहा है, आज हमारे उलमा कर रहे हैं। देखें कितनी बड़ी बात, कुरान कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहने देता। अल्लाह ने कहा फ़िरौन का जुर्म क्या था? पहला जुर्म था कि वो ज़मीन में अपनी हुकूमत समझ बैठा था, और अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए उसने चाल कौन सी चली? लोगों को गिरोहों में बांट दिया, डिवाइड एंड रूल किया। किसी को कहा कि रफ़ा यदैन के साथ जहाँ इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती तो फिर ये बरेलवियों की मस्जिद डिक्लेयर होगी, आप इस मौलवी के पीछे नमाज पढ़ के आएंगे तो आपको लौटानी पड़ेगी। फिर कहा जहाँ ऊंची आमीन कही जाती है वो अहल हदीसों की मस्जिद होगी, अगर आप अपनी नमाज़ें सही रखनी हैं तो फिर यहाँ खड़े होकर पढ़ें। कहीं कहा कि नहीं, ये जो अहले बैत को तस्लीम करते हैं, उनका हक़ तस्लीम करते हैं खिलाफत पर, तो फिर इन लोगों के पीछे नमाज नहीं होगी। और कहीं कहा अहले सुन्नत वल जमात के पीछे नहीं होगी। कितना बड़ा जुर्म है फ़िरौन का कि उसने लोगों को गिरोह में तकसीम कर दिया कि अल्लाह को उसे गर्क करना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं आज का मौलवी, आज का आलिम अगर लोगों को मसलक में तकसीम करेगा तो क्या अल्लाह इस जुर्म को माफ़ कर देगा? इस जुर्म को माफ़ नहीं करेगा। फिर क्यों दज्जाल के फॉलोअर्स में अल्लाह कहता है कि मैं मौलवियों को ही कर दूंगा, उलमा को कर दूंगा? वो उलमा जिन्होंने इन्हीं चीज़ों में लोगों को बांटे रखा, अपनी अपनी दुकानें कायम करने के लिए, फ़िरौन की तरह अला फिल अर्ज़ बनने के लिए, कि हमारे दीन को सही समझा जाए, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के दीन को सही समझा जाए, मौलाना मदूदी साहब के दीन को सही समझा जाए। ये बड़े नाम हैं, इन लोगों की बड़ी खिदमत हैं दीन के लिए। लेकिन आज का मौलवी इन्हीं के नाम पे दुकान चमकाता है कि इनके मानने वाले तो ठीक हैं, बाकी लोग गलत हैं। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी, उनके मानने वाले तो ठीक हैं, बाकी लोग गलत हैं। बस दीन है ही यही जो इन उलमा ने हम तक पहुंचा दिया। ऐसा नहीं है। ये हर दौर में, हर दौर के फ़िरौन यूज़ करते हैं इस चीज़ को, मसालिक में बांटने को, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए। इस तरह से उसने
यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, कुछ लोगों को कमज़ोर कर दिया, उसने अपने खिलाफ लोगों को बांट दिया गिरोहों में, और इस तरह से उसने उनको कमज़ोर कर दिया ताकि उसकी अला फिल अर्ज़ कायम रहे। फिर वो लड़कों को ज़िबा करता था और औरतों को ज़िंदा रहने देता था, बेशक वो मुफसिदों में से था। व नुरीदो, और हमारा इरादा क्या था, अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़इफ़ू, कि हम एहसान करें उन लोगों पर जो दबा दिए गए, जो कमज़ोर हो गए ज़मीन में, और हम उन्हें इमामत बख्शें और उन्हें ज़मीन का वारिस बनाएं। वनुमक्किनु लहुम फिल अर्ज़ि वनुरिया, और हम उन्हें ज़मीन में हुकूमत बख्शें और दिखा दें फ़िरौन को और हामान को और उनके लश्करों को कि हम उनसे जिस चीज़ से वो डरते थे वही पेश आके रहेगी। आयत नंबर 7, यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू होती है, खौफ की स्टोरी। हमने मूसा की वालदा की तरफ वही की कि इसे दूध पिलाओ। फ़ाइज़ा ख़िफ़्ते अलैहि, जब तुम्हें खौफ हो तो इसे पानी में डाल दो, और वला तखाफ़ी वला ताज़नी। अच्छा, अभी तो खौफ है कि फ़िरौन के कारिंदे बच्चे की आवाज़ ना सुन लें, और कहा जा रहा है कि इसको और पानी में डाल दो। अब पानी में एक बच्चा जैसे रहेगा, हम कश्ती में भी बच्चे बैठ रहे हो ना तो कहते हैं संभल के बैठो, ऐसा ही होता है ना, हम खुद भी संभल के बैठते हैं। और जब उनको बिठाया जा रहा है, पानी में डाला जा रहा है, तो क्या उनकी वालदा को ये खौफ नहीं होगा कि कोई मगरमच्छ, कोई मछली ऊपर से इस तरह से आए तैरती हुई कि वो बास्केट उलट दे, बच्चा खुद हाथ पांव मारते हुए पानी में गिर जाए? तो ज़्यादा खौफ का मकाम है। लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि रिस्क लो, ज़्यादा खौफ में डाल दो, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल करते हुए। जिसको दुनिया रिस्क कहती है, अल्लाह उसे खुद पर तवक्कल कहता है। मत डरो और इसे पानी में डाल दो, और ना डरो और गम खाओ। इन्ना रादू हो इलई, कि हम इसको आपकी तरफ लौटा देंगे और इसको बनाएंगे रसूलों में से। फिर ये स्टोरी आगे चलती है। फिर आयत नंबर 13, जो अल्लाह ने वादा किया था, फ़रद ना हो इला उम्मे ही, तो हमने लौटाया उनकी वालदा की तरफ उनको, ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और ताकि वो गम न करें, और ताकि इंसान जान लें कि अल्लाह का वादा पूरा होकर रहता है। लेकिन फिर भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। 7 नंबर आयत में अल्लाह ने वादा किया कि लौटाऊंगा। 13 नंबर आयत में अल्लाह ने वादा पूरा करके उसका कंक्लूजन भी, मोरल लेसन भी हमें दिया कि जैसे हज़रत मूसा को उनकी वालदा की तरफ लौटाया, अल्लाह का हर वादा सच्चा है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले फलाह पाएंगे तो वो पाएंगे। अल्लाह कहता है अल्लाह पर के लिए, अल्लाह को प्रायोरिटी बनाकर अल्लाह के रास्ते में सब्र करने वाले अगर जन्नतुल फिरदौस पाएंगे, तो अल्लाह का वो वादा ऐसे ही सच्चा होगा। अल्लाह ये बताना चाहता है। फिर उनकी जवानी की कहानी है, और फिर वही वाक़या है जिसमें वो उन्होंने उस बंदे को मारा, और फिर उनकी दुआ है जैसे ही कत्ल हुआ है उनसे, काल रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी, आयत नंबर 16, फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उनको माफ़ कर दिया गया। देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने का अल्लाह का प्लान था। वो दरख्त का फल खाते या ना खाते, उन्हें आना था ना, क्योंकि अल्लाह ने कहा था, फरिश्तों के सामने कहा था कि मैं एक अपना नायब बनाने वाला हूँ जिसको ज़मीन पे भेजूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महल से निकलना था, उनकी तरबियत सहराओं में करनी थी, उनको रूरल एरियाज़ में रखना था, उनको बताना था कि असबाब के बग़ैर भी अल्लाह आपकी मदद कर सकता है, अल्लाह नहीं असबाब का मोहताज। तो फिर उसके लिए उनसे ये कत्ल होना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो फल खाना उनकी पनिशमेंट का बायस नहीं बना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कत्ल उनकी पनिशमेंट का बायस नहीं बना, बल्कि उनको रिसालत तक लेकर गया है। अब वहाँ मदियन गए हैं, मदियन से वापसी पर आपको रिसालत मिली है कोहे तूर पर। तो अल्लाह जो कर रहा होता है, हमें बाज़ दफ़ा वो बहुत बड़ी मुसीबत नज़र आ रही होती है, लेकिन असल में अल्लाह ताला हमें हज़रत मूसा की तरह कोहे तूर पर पहुँचाना चाह रहा होता है, हमें गाइडेंस तक पहुँचाना चाह रहा होता है। हमारी ज़िंदगी का कोई दुख, हमारी ज़िंदगी का कोई वाक़या इस चीज़ का सबब बन जाता है हमारे लिए हिदायत का, अल्लाह की तरफ पलटने का। अल्लाह ने माफ़ कर दिया क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्योंकि आपने मुझे माफ़ कर दिया, ये नेमत दी है मुझे, आइंदा मैं किसी भी मुजरिम की मदद नहीं करूँगा। और फिर वो खौफ में, फ़अस्बहा फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न, मैंने कहा ना ये आयत नंबर 35 तक खौफ की स्टोरी है। फिर वो डरते हुए शहर में गए, और फिर वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भागे हैं, वो भी खौफ में भागे हैं। यहाँ पर आयत नंबर 21 में, फ़ख़रज मिनहा ख़ाइफ़न,
تو وہ خوف میں ڈرتے ہوئے یا ترکب ہو کہ میرا تعقب نہ کیا جائے، اور پھر وہ دعا بھی کر رہے تھے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ پھر ابھی خوف وہی چل رہا ہے۔ پھر وہ مدین پہنچے ہیں، وہاں پر وہ 2 لڑکیوں سے ملاقات ہونا، ان کے جانوروں کو پانی پلانا، اور ایونچولی پھر شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہونا۔ تو پھر وہاں سے بیٹھے ہوئے آپ نے دعا بھی مانگی ہے، آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے، اس ٹائم میں اس کا ویل ڈیزرو پرسن ہوں، میں اس کا مستحق ہوں۔ پھر ان کی شادی کا ہونا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو جیسے ہی آپ نے سٹوری سنائی ہے تو آیت نمبر 25 وہ بھی کہہ رہے ہیں قال لا تخف، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے ہیں، اور خوف ہی آپ کے وہاں سے فرار کا باعث بنا ہے مصر سے، تو انہوں نے کہا لا تخف، مت ڈریے، نجوت من القوم الظالمین، اب آپ سیف ہینڈز میں ہیں، آپ اس قوم سے، ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ آگے ان کی شادی کی کہانی ہے، پھر وہاں سے کوہ طور پر پہنچنے کی کہانی ہے، اور پھر آیت نمبر 31، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور عصا ڈال دیجئے، جب وہ ڈالا گیا تو وہ ایک سانپ بن گیا، ایک جن بن گیا بھاگتا ہوا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ اسے پکڑیے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ اسے قبول کرو اور مت ڈرو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ مت ڈرو۔ ان کی والدہ کو جو سٹوری شروع ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے بچپن سے، یہ خوف کی ہی سٹوری تھی۔ انک من الآمنین، آپ کو امن عطا کیا جائے گا۔ اس لوگ یادہ کا پھر آگے بات ہوتی ہے کہ اپنا ہاتھ ڈالیے اور پھر وہ نکلے گا، اور 38 تک پھر یہ کہانی ختم ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے فرعون کی اور حامان کی۔ وقال فرعون، 38 سے، وقال فرعون یا ایھا الملأ، اے فرعون نے کہا اے میری قوم کے سردارو، کیا کہتے ہو، کیا میرے سوا کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنے سوا کسی خدا کو نہیں جانتا۔ موسیٰ آج کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو پھر اس نے کیا کہا، حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنوا، جہاں پر میں چڑھ کر خدا، موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے تکبر کیا، اس کا حق نہیں رکھتے تھے، پھر ہم نے انہیں پکڑا اور پانی میں غرق کر دیا اور انہیں آنے والے زمانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ آپ لوگ پلیز اپنے اسپیکر بند کر دیجیے۔ دوبارہ کاٹ کے نا دوبارہ کال ملا لیں۔ اچھا، چلیں پھر آیت نمبر 75، یہاں سے قارون کی سٹوری شروع ہوتی ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ نے خود کہا ہے کہ قارون کس میں سے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے بغاوت کی، اور ہم نے اسے عطا کیے تھے خزانے، اور ان کی چابیاں بھی اٹھانے کے لیے بڑی قوت لگتی تھی، طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت اٹھا سکتی تھی۔ اور ایک اور بات، فخرج علی قومہ، اس نے نمائش کی، وہ نکلا اپنی قوم کی طرف، فی زینتہ، اپنے ہی آپ کو اپنے پروٹوکول میں نکلا۔ اس کے پاس بڑی اچھی سواریاں تھیں، بڑے اچھے خادم تھے، اس نے بڑا اچھا لباس پہن رکھا تھا، اور اس نے اپنا ساری ویلتھ شو کر رکھی تھی۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کی جو بیوٹی ہے اس کی نمائش کرنا، اظہار کرنا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، پھر کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا، اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا، مثل ما اوتی قارون، جیسا قارون کو ملا ہمیں بھی ایسے مل جاتا۔ یہ ورڈ ہم آج بھی کہتے ہیں، جیسا قارون کو ملا ہمیں مل جاتا۔ ہمیں سے ہر ایک ایلن مسک ہونا چاہتا ہے، جیف بیزوس ہونا چاہتا ہے، بل گیٹس ہونا چاہتا ہے، بلینئر ہونا چاہتے ہیں، فوربس میگزین کے ٹائٹل پہ آنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سیلیبریٹیز کون ہیں؟
जैसे उनका कारून था, हमारे सेलिब्रिटीज़ बिलीनियर्स हैं, कितने सेशन किए जाते हैं। कासिम अली शाह हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बहुत से बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लाखों खर्च करके लोग उनके सिर्फ मोटिवेशनल स्पीक सुनने जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। हमारी उम्मत को कारून का वाक़या इसीलिए सुनाया गया, हमारी उम्मत को इसीलिए बताया गया कि हमारी उम्मत का फितना माल है। हम कामयाबी का मयार माल को समझते हैं। कौन कितना कामयाब है, तो उसके पास कितनी जायदाद है, उसके पास कितने असासे हैं, कैसे वो एक अखबार बेचने वाला था, कैसे वो एक साइकिल पे रेडी लगाने वाला था, और फिर कैसे उसने एक इंडस्ट्री खड़ी कर ली। सिर्फ इस चीज़ को कामयाबी समझते हैं, और इसी कामयाबी को हासिल करने के तरीके बताए जाते हैं। ये वर्ड, ये आयत का तर्जुमा है कि उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा होना चाहते हैं, हम भी कारून जैसा बनना चाहते हैं, हम भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कारून तो बड़ी किस्मत वाला है, बड़े ऊंचे नसीब लेकर पैदा हुआ है। तो फिर जैसे ही वो धंसा ज़मीन में, और इल्म वालों ने कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी है, और साबिरीन को दौलत नसीब होती है। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, वो अपने घरों समेत, वो अपने महलात समेत, वो अपने ख़जानों समेत जब ज़मीन में धंसा दिया गया, फमा काना लहू, तो कोई नहीं था, कोई ऐसी जमात नहीं थी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उसकी मदद करती अल्लाह के सिवा, और उसकी मदद नहीं की जा सकती थी। और फिर वही लोग जो पहले हसरत कर रहे थे, कहने लगे हाय काश ये हमने गलत बात की। बस अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और उनकी तकदीरें रखता है। शुक्र है कि हम कारून जैसे नहीं थे, वरना हमें भी धंसना पड़ता। वै का अन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अल्लाह कहता है हाय अफसोस कि काफिर फलाह नहीं पाएंगे। जो माल की मोहब्बत में मुब्तला है, अल्लाह उसे काफिर कह रहा है। जो माल की हसरत में मुब्तला है, अल्लाह उसे काफिर कह रहा है कि अभी वो फिरौन उस कारून के मुकद्दर पे रश कर रहे थे, और अभी कहने लगे कि ए काश, और शुक्र पढ़ने लग गए कि हम इसमें से नहीं थे, वरना अब आज हम भी धंसाए जा रहे होते। इंसान के लिए ज़िंदगी की मिसाल, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल यही कुछ है। एक पल में क्या कर दिया अल्लाह ने उसे, जो सेलिब्रिटी बना फिर रहा था, उसको निशान इबरत बना दिया। वही इंसान जो उसके मुकद्दर पे रश कर रहे थे, फिर शुक्र पढ़ रहे थे कि शुक्र है वो उन्हें कारून की तरह कुछ नहीं दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सो दिस इज़ सूरह कसस। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।